Good morning, students. Today we are going to study on the cytological analysis of shoot apical meristem. Cytological analysis experiments have been made to determine the location and number of initials by the application of colchicine. Colchicine increases the number of chromosomes in a few cells as the derivatives of such cells possess the increased number of chromosomes. It is possible to identify all the cells that are derived from the colchicine affected cells by their enlarged nuclei. If the affected cells is an initial, entire regions of tissues, the cells of which have the increased chromosome number result. Thus, polyploid chimera are artificially formed. This phenomenon makes it possible to identify the initials. So here you see the cell layers on which colchicine applied, and here you see the large size of cells. Earlier cytologists worked on this phenomenon to find out the initials of cells. Histochemical and ultrastructural investigations have indicated that different cytohistological zones in the shoot apical meristem represent region of localized physiological activity. However, a consistent picture of differences in such an activity in different zones has not yet evolved. In support of the quiescent zone concept in the shoot apical meristem and waiting meristem concept of the French school, the RNA content and the level of RNA synthesis activity in the central zone are found to be low compared to the flank meristem in the vegetative phase of the plant, in contrast to high RNA content and level of RNA synthesis activity seen during the transition to reproductive phase. जो हिस्टोकेमिकल अल्ट्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशंस हुए थे उसमें साइटोहिस्टोलॉजिकल जो जोन्स थे इनके शूट एपिकल मेरिस्टम में, उनमें उन्होंने जो साइटोहिस्टोलॉजिकल जोन्स थे उनकी इस बेसिस पे बनाई थी कि जो अलग अलग जोन्स है उनमें अलग अलग एक्टिविटी होती है. तो उन्होंने जो एक्टिविटी नोट की उसमें एक जो हम लोग बात करते हैं कि जो क्विसेंट जोन कॉन्सेप्ट आया था जिसको ये वेटिंग मेरिस्टम कहा था फ्रेंच स्कूल वाले जो साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने कहा था कि जो आरएनए की जो कंटेंट है और आरएनए की सिंथेसिस है वो जो सेंट्रल जोन है उसमें जब वेजिटेटिव फेज में होता था उस समय इसकी कंटेंट कम रहती है कोशिका के अंदर, लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज आती है वैसे ही इसकी कंटेंट हाई हो जाती है इस एरिया में आरएनए कंटेंट और आरएनए सिंथेसिस. तो ये इन्होंने जो एक्टिविटी नोट की थी उसको उन्होंने जो नाम सपोर्ट ऑफ द क्विसेंट जोन, उन्होंने उसको नाम दिया क्विसेंट जोन. ये कुछ समय के लिए तो इनएक्टिव रहती है, बाद में ये एक्टिव हो जाती है. तो जो साइटोलॉजिकल जोन्स थे, जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने साइटोलॉजिकल जोन्स बनाए थे, उसमें जैसे अरेबिडोप्सिस है, ये थे सेंट्रल मदर जोन, ये पेरिफेरल जोन, ये रिब जोन. तो इसमें उन्होंने बताया था जो अरेबिडोप्सिस में जो रिसेंट जो स्टडीज हुई हैं 2000 के आस में, अरेबिडोप्सिस शूट एपिकल मेरिस्टम कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ साइटोलॉजिकल जोन्स और सेल लेयर्स. The shoot apical meristem has cytological zones that represent regions with different identities and function. इन्होंने different जो zones है layers उसके आधार पे इन्होंने cytohistological zonation बताए जो कि cytohistological zones theory पे बेस्ड थे. इसमें जो center of zone है, the center zone ये वाला जो हिस्सा है इसमें है contains meristematic cells divide slowly but are ultimate source of the tissues that make up the plant body. इन्होंने उसको स्लो धीरे धीरे इसमें जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिव हो रही है ये जो बताया, लेकिन इसके अंदर इन्होंने बताया कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ टिश्यूज है जो कि यहाँ से की प्लांट बॉडी बनती है. फिर ये साइड वाला हिस्सा है, इसमें ये देखिए जो पेरिफेरल जोन है, इधर साइड वाला हिस्सा, ये जो पेरिफेरल जोन है इसको इन्होंने माना रैपिड सेल डिवीजन.
The peripheral zone in which cell divide rapidly surrounds in the central zone and produces the leaf primordia. और इस हिस्से से ही यहाँ से जो लीफ प्राइमोर्डिया है उसका इनिशिएशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो सेल जो एक्टिविटी होती है रैपिडली, यहाँ पे सेल्स ग्रो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। फिर ये जो बीच वाला हिस्सा है जो सेंट्रल जोन के जस्ट नीचे वाला, उसको बोलते हैं रिब जोन। ये लाइज करता है तो इंटीरियर ऑफ द सेंट्रल जोन एंड जनरेट्स द सेंट्रल टिश्यूज ऑफ द स्टेम। The shoot apical meristem also has cell layers. हम जब ना जो स्टडीज की है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम देखते हैं कि जो सेल लेयर्स होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, वो दो तरह की होती है, जिसमें कि एक में होता है एंटीक्लिनल डिवीजन और एक में होता है जिनमें कि पेरिक्लिनल डिवीजन। तो जो अर्ली जो वो थे साइटोलॉजिस्ट, उन्होंने इस बेसिस पे इन्होंने बताया कि मोस्ट सेल डिविजन्स आर एंटीक्लिनल इन द आउटर L1 एंड L2 लेयर। तो ये जो L1 और L2 लेयर है, जिसको कि हम लोग ट्यूनिका भी कहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इसके अंदर जो सेल डिविजन्स होते हैं वो एंटीक्लिनल होते हैं, अपनतिक इसमें कोशिका विभाजन होता है, तो इनको नाम दिया L1 एंड L2 लेयर। while the planes of cell divisions are more randomly oriented in the L3 layer। ये तीसरी जो लेयर है L3, इसमें जहाँ प्लेन्स ऑफ अब बहुत ज्यादा मतलब कि सब दिशाओं में हो रहे हैं L3 लेयर्स, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ये जनरेट करती है शूट एपिडर्मिस को। ये जो बाहर की जो एपिडर्मिस बनती है कोशिकाओं की, उसको कौन बनाता है? L1 लेयर। द L2 एंड L3 लेयर जनरेट्स इंटरनल टिश्यूज, और इसका ये जो अंदर वाला लेयर है वो इंटरनल टिश्यूज बनाती है। Details of the DNA synthesis and the relative concentration of RNA and proteins in the cells of central zone and flank meristem suggest differences in the metabolic activity. At the ultrastructure level, attention has been paid to structure of plastids and mitochondria, density of ribosomes, and the proportion of organellar volumes to distinguish the cell of the central region and flank meristem, but differences are not striking enough to attribute any significance to them। तो जो अगर हम डिटेल्स एनालिसिस करते हैं इन दोनों रीजन्स की, सेंट्रल जोन और फ्लैंक मेरिस्टम की, तो इन्होंने जो साइंटिस्ट है उन्होंने इनको किस किस बेस पे इनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की कि डीएनए कैसा बन रहा है, डीएनए सिंथेसिस, जो कॉन्सेंट्रेशन है आरएनए की वो कितनी है दोनों रीजन्स में, उसका कंपैरिजन करके प्रोटीन्स कौन से बन रहे हैं, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वो कैसी हो रही है, तो इसमें राइबोसोम्स कैसा है, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कैसा है, और जो डेंसिटी राइबोसोम्स की वो कैसी है, जो भी ऑर्गेनेल्स है उसकी वॉल्यूम्स क्या, उनकी बेसिस पे उन्होंने ये जो दोनों रीजन्स है उनको अंदर अंतर करने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दिए गए इतने। तो इसमें जो क्या क्या बेसिस उन्होंने लिए, तो सेल डिवीजन एक्टिविटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द शूट एपिकल मेरिस्टम irrespective of whichever concept of apical organization mentioned. This refers not only to duration of mitotic activity, that is mitotic cycle noticed in the cells, but also to the mitotic index. Frequency of mitosis in the meristem term or zone therefore। तो इन्होंने जो साइंटिस्टों ने देखा कि साइटोलॉजिस्ट थे कि जो सेल डिवीजन एक्टिविटी है वो पूरे शूट एपिकल मेरिस्टम में एक जैसी नहीं है, उसमें अंतर है। तो उन्होंने उसको जो उन्होंने कि कौन से हिस्से में, जैसे सेंट्रल जोन हिस्सा है, पेरिफेरल जोन है, रिब मेरिस्टम है, तो उसको उन्होंने एक्टिविटी बेसिस पे उन्होंने अंतर करने की कोशिश की। तो यहाँ जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो विभाजन हो रहा है कोशिकाओं का, उसके आधार पर इन्होंने उसको अंतर करने की कोशिश की। इस जो समसूत्री विभाजन हो रहा है तो वो कितनी कोशिकाओं में हो रहा है और उसका समय वो ले रहा है समसूत्री विभाजन करने का उन कोशिकाओं में, तो कौन से हिस्से में ज्यादा तेज गति से समसूत्री विभाजन हो रहा है और किस में उसकी गति धीमी है,
उस आधार पर उन्होंने जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसमें अंतर करने की कोशिश की। तो इसमें इन्होंने जो क्राइटेरिया लिया कि कौन कौन से माइटोटिक इंडेक्स है। माइटोटिक इंडेक्स क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ सेल्स एक्चुअली अंडरगोइंग डिवीजन अमंग द टोटल पॉपुलेशंस ऑफ सेल्स एट एनी टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसमें क्या है कि जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उस समय माइटोटिक इंडेक्स वो है कि जो कि परसेंटेज बताता है सेल्स का, जो कि हकीकत में डिविजन्स जो भी आपने पॉपुलेशन सेल की चुनी उसमें से कितने जो सेल्स हैं जिनमें कि विभाजन हो रहा है उसको जब टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन को वो जो स्टडी हो कहलाएगी आपकी माइटोटिक इंडेक्स। माइटोटिक साइकिल क्या है? द एक्चुअल टाइम टेकन फॉर अ सेल डिवीजन साइकिल। और जो टाइम लग रहा है एक समसूत्री विभाजन पूरा होने के अंदर उसको बोलते हैं हम लोग माइटोटिक साइकिल। In fact, the recognition of different cytohistological zones in the meristem is based primarily on these two main parameters of mitotic activity. This conclusion is based on the actual observation of mitotic figures in the section meristems, counts of mitosis, distribution of mitosis in different zones, application of radio-labeled DNA or RNA or protein precursors and their subsequent localization, etc. तो जो भी जो साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन जो कॉन्सेप्ट आया था इसके ऑर्गेनाइजेशन में शूट एपिकल मेरिस्टम के, वो मेनली ऑन दिस टू पैरामीटर्स पे था। माइटोटिक जो समसूत्री विभाजन की जो एक्टिविटी उसके आधार पे था। इनका जो कंक्लूजन था वो उसका जो मेन जो आधार था कि माइटोटिक फिगर में उन्होंने कैसे लिया था, जिससे कुछ सेक्शन कटिंग करके काउंट्स ऑफ माइटोसिस उसे माइटोसिस काउंट किया, डिस्ट्रीब्यूशन माइटोसिस इन डिफरेंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिफरेंट जोन्स में, और उन्होंने एप्लीकेशन की रेडियो लेबल डीएनए की और आरएनए की। तो इनके आधार पर इन्होंने जो माइटोटिक इंडेक्स और जो साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन है वो डिफरेंट जो पार्ट्स है इस एपिकल जो उसमें वो उन्होंने बताए। तो इसी आधार पे जब उन्होंने जो माइटोटिक एक्टिविटी की उसके आधार पे जो उनके रिजल्ट्स आए, द रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी vary in different developmental stages of meristem, for example during different plastochromic stages। तो इसमें जो एक्सियल जोन है और जो फ्लैंक मेरिस्टम है उनकी जो कोशिका उनमें जिसे इन्होंने देखा तो एक्सियल जोन में क्या था, नेग्लिजिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन देखी गई, जबकि जो फ्लैंक मेरिस्टम है वो उसमें जो कोशिका है वो डिवाइड समटाइम्स अप टू ट्वाइस एज फास्ट एज दोस इन द एक्सियल जोन। इसमें जो डिवीजन था सेल डिवीजन उसकी जो स्पीड है वो डबल है इसके एक्सियल जोन के कंपैरिजन में। एंड एक्सटेंडेड इसमें जो माइटोटिक साइकिल्स हैं वो लंबी है उनकी, और इसमें क्या शो शॉर्टर माइटोटिक साइकिल्स। इसमें लो माइटोटिक इंडेक्स है और इसमें है शो ग्रेटर माइटोटिक इंडेक्स मींस डिवाइड मोर फ्रीक्वेंटली। तो इस आधार पे इन्होंने दो डिविजन्स बताए, फ्लैंक मेरिस्टम और एक्सियल जोन। तो यहाँ पे जो कोशिकाओं का जो विभाजन हो रहा है बहुत ही तेज गति से होता है। One of the consequences of this is that the apical doom increases throughout this developmental. For example, in Chrysanthemum sigetum, the actual doubling time of the axial zone cell population is approximately 6 days, while it is only 2-3 days in the flank meristem. That is, the axial zone supplies new cell to the surrounding flank meristem. तो इस पे जब स्टडी की क्रिसेमेंथन सैगिटम, तो जो एक्चुअल डबलिंग टाइम था वो एक्सियल जोन पॉपुलेशन में तो 6 डेज लगा, और जबकि जो फ्लैंक मेरिस्टम उसमें 2-3 दिन का समय लगा। तो मेरिस्टम दैट इज द एक्सियल जोन सप्लाइज न्यू सेल्स टू द सराउंडिंग फ्लैंक मेरिस्टम एट अबाउट हाफ द रेट एट विच द लेटर सेल्स कंप्लीट देयर mitotic divisions, and almost similar imbalance in mitotic cycle in seen in almost all other plants investigated thus far. A study on the shoot effect of Arabidopsis has shown that the mitotic index of the flank meristem is approximately 50% higher than that of the central zone. तो जो Arabidopsis के सूट पे जो इसका इफेक्ट देखा गया तो उसमें जो माइटोटिक इंडेक्स की जो गति है वो फ्लैंक मेरिस्टम में
50% ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू सेंट्रल जोन। थैंक यू।